Namaskar, hello everybody. Good evening. We'll wait for 2 minutes and then we'll start the session. हम 2 मिनट वेट करेंगे फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. आई बी टॉकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस. मैं दोनों भाषाओं में बात करूंगा, हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, वॉट एवर आई से इन इंग्लिश आई स्पीक इन हिंदी. जो भी मैं इंग्लिश में बात करूंगा उसको वापस मैं रिपीट करूंगा. विल हैव एन इंटरेक्टिव सेशन. बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा ये. आई वुड लव कि आपका भी पार्टिसिपेशन हो तो मजा आएगा. आई वुड नीड योर पार्टिसिपेशन ऑल्सो. जस्ट विल वेट फॉर 1 मिनट. कैन यू सी द स्लाइड? ओके, यू कैन जस्ट गो थ्रू द स्लाइड. यू कैन सी द स्लाइड. आपको स्लाइड दिखता होगा. उसके ऊपर हम बात करेंगे. विल बी टॉकिंग ऑन दिस स्लाइड्स. लास्ट 30 सेकेंड्स एंड देन विल स्टार्ट. 30 सेकेंड और अब फिर हम स्टार्ट करेंगे. Mm. 15 seconds more. Can you hear me? Can you see me and the slide both? आपको मैं दिख रहा हूं और स्लाइड भी दिख रहा है क्या? से yes or no, whatever you are experiencing, you can let me know. Yes, perfect. Yes, perfect, perfect. Great, great. Yes, super. So today's session will be very interesting. ठीक है? So hello everybody. My name is Vishal और मैं आध्यात्मिकता में spiritual journey में around 36 years से हूँ. I started my journey at the very early age. बहुत कम उम्र में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. At the age of 9-10. Okay. What do you think? Spiritual journey is simple or difficult? Spiritual जो journey है हमारी यात्रा वो simple है कि कठिनाई है या है? Okay. It's simple or difficult? What do you think? हमारी जो जर्नी है, the journey which we are having, जो हम कर रहे हैं, very difficult. Okay, good. Other people depends upon the thought process. Okay. The journey जो हम जी रहे हैं अभी, जो आध्यात्मिक जर्नी अगर जीता है, the people who are living the spiritual life, it's simple life or difficult life? If it's a difficult life, अगर वो life difficult है, then why we are choosing the spiritual path? आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ये हमारी आध्यात्मिक जर्नी हमने चूज की है और वो आपको लगता है कि वो डिफिकल्ट है, तो व्हाई वी आर choosing this path? Why we are choosing this spiritual path if you think that this spiritual path is difficult? Why? See, I'll tell you one thing. Spiritual path is not simple, okay? But spiritual path is not simple. Then why we choose this path? Why we are choosing this path? Because the final destination will give happiness. Okay. Now, what do you mean by happiness? What do you mean by happiness? Somebody has written कि जो final destination उसमें हमें खुशी मिलेगी, happiness मिलेगा, final destination. Say in spirituality, I'll tell you the bitter truth. I'll tell you many bitter truth. There is nothing called as happiness. There is nothing called as sadness. Okay? There is nothing called as satisfaction.
There is nothing called as happy, sad, good, bad. No, spirituality doesn't understand such things. If you come out of that happiness and sadness, ये सब चीजों से दूर हो गए ना, तब आप रियल स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे. देन यू विल गो इन into that spiritual path. No, happiness is also not now. Nothing. No, there is nothing called as word as happiness. Okay, happiness is a state of mind. Happiness जो खुशी है ना, वो एक स्टेट ऑफ माइंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप समझ गए ना. इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हैप्पीनेस. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सैडनेस. सी प्लीज अंडरस्टैंड, वी कंपेयर हैप्पीनेस. हाउ यू कंपेयर हैप्पीनेस, यू नो, आई विल एक्सप्लेन यू. मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज योर फेवरेट स्वीट, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, आपका सबसे चाहिदामंद खाना कौन सा है? प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए. विच इज योर फेवरेट फूड विच यू लाइक द मोस्ट? प्लीज, आई वांट एन इंटरैक्टिव सेशन. I'll give you the answer of what you have written. Very important place. Rasmalai, very good. Rajma chawal, super. Okay. Some said rasmalai is one of the sweet. Somebody said rajma chawal. Okay, it's one of the dish of India. Okay. Or and only two people are favorite. Other people are on fast. पूरे दिन भूखे रहते. फास्ट में है क्या बाकी के लोग? कुछ नहीं खाते. Please, mango, very good, super. Please, let's have interactive session. Some people like mango. Oh, beautiful. Great. And dosa, super. Fruits. Oh, good. So this is some people say my favorite dish is dosa, mango, fruit, rajma chawal. Okay. अगर आपको एक साल तक नहीं मिलता, इफ यू डोंट गेट दैट फूड फॉर 1 year, ओके, दैट क्रेविंग विल इंक्रीज. वो इच्छा बढ़ जाएगी. यस और नो? यस, इच्छा बढ़ जाएगी. ओके. If you don't get, for example, mango for 1 year and it is your favorite food, mango, fruit, okay, or rasmalai is a favorite sweet, अगर आपको एक साल तक नहीं मिलेगा तो क्रेविंग बढ़ेगी. दैट क्रेविंग विल इंक्रीज. ओके, अब ध्यान से सुनना. उसके बाद अचानक मिलेगा. अचानक, इफ यू गेट वन डे, you get mango or sweet after 1 year, you will be happy. Pakka happy? Yes. 100% happy? Yes or no? Yes, na happy. You will be happy. Okay, you will eat one mango, two mango, three mango. Afterward, क्या होगा? Fourth mango में you will say, no, 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 my stomach is full. Fifth mango, and after sixth mango, you will start hating that mango. मतलब जो mango आपको पहले नहीं मिला तो खुशी, दुख था, मिल गया, खुशी था, फिर वही दुख का कारण बन गया. समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब यू आर डिफाइनिंग हैप्पीनेस विद द अमाउंट ऑफ सैडनेस. आप समझ गए? मतलब आप हैप्पीनेस किससे कंपेयर करते? सैडनेस से कंपेयर करें. मतलब सैडनेस को कम करने का काम हैप्पीनेस. अंडरस्टूड? सो यू थिंक दैट मोर सैडनेस, मोर हैप्पीनेस. ओके. सो happiness you think is the overcome of sadness, but it is not happiness. समझ में गया? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? You didn't had mango, mango नहीं मिला for 1 year, sadness. You got this mango, you came out of the sadness. आप सैडनेस से, दुख से सुख में आए ऐसा आपको लग रहा है, एंड वही फिर दुख का कारण हो गया. इसका मतलब प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर डिफाइनिंग हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ सैडनेस. समझ में आ रहा है? से यस और नो. प्लीज से यस और नो. So whatever, you have a house, नहीं है, you don't have any house, very sad. You got the house, good. Then house is so big, maintenance हालत खराब हो रही है. Oh, again lot of pain. Understood? So the end result is, if you want more happiness, you need to have more sadness. Such, right or wrong? What is balance? How can you balance? Tell me. There is nothing called as balance. कैसे balance करोगे? One mango. You will be happy with one mango? नहीं. You'll take two mango. People never get satisfied. I'm telling you. People want more. ये तो human tendency है. Be it money, be it relationship, be it finance. No, we never get satisfied. सबसे important चीज है.
मेरा कहने का मतलब आप अभी तक नहीं समझे। हैप्पीनेस इज डिफाइंड विद द अमाउंट ऑफ सैडनेस, ये समझ में आया? खाना नहीं मिला दुख है, खाना मिल गया सुख, वही फिर दुख का कारण, वही दुख का कारण बन गया, वही दुख का कारण बन गया। क्या लाइफ जी रहे हम लोग अरे उनके पास गाड़ी है, दे हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। वो दुख हो गया, कार मिल गई, अरे छोटी कार है, आई वांट अ बिगर कार, एंड देन बिगर कार, एंड देन बिगर कार। ओ, I don't have a family. Shit, I also want to have a family. Family, then I want to have big family. And that family also create more problems. So understand? Baba, I'm not talking about only feel eating. You are not understanding the crux. ओके, आप सिर्फ खाने की मैंगो का एग्जाम्पल दिया। वी फॉल सिक, इसका मतलब क्या है? अरे ऐसा नहीं समझ रहे आप। घर नहीं मिला दुख है, घर मिल गया सुख है, फिर वही दुख का कारण बनेगा। फैमिली नहीं है, और ये शादी नहीं हुई, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, आई एम सो अनहैप्पी। देन यू गेट मैरिड, देन व्हाट विल हैपन? Again you will be unhappy. so, so understood, understood what I'm trying to say? समझ में आ रहा है? Say yes or no. Very important चीज। So spirituality is nothing to do with happiness and sadness. सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, please understand. Absolutely right. Desire is a cause of pain. So you think that, oh, I want to go into spiritual path, आध्यात्मिक पाथ में चलना है जिससे मैं खुश रहूंगा, झूठ है। It's a biggest lie. Okay, the biggest pain of life, of journey, is the spiritual journey. Okay, you need to accept it and move forward, that's a different thing. The blissful state at the end is amazing, जो लास्ट स्टेज है वो अमेजिंग है, पर उसके बीच में द पाथ, द जर्नी इज नॉट इजी, यू नीड टू एक्सेप्ट। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट सोल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, so we are running, see, 99% people are running for desires: money, पैसा, health, शरीर, and relationship. Only three things people are running in this Kali Yuga, or in this Mother Earth, born in this Mother Earth. Right? पैसा, health, relationship, money, health, relationship. चौथा कोई चीज है क्या? And are you satisfied with all four things? बाबा पैसा आएगा तो पावर आएगा, पैसा नहीं तो पावर नहीं। अंडरस्टैंड? हाँ। फोर्थ कोई चीज है नहीं। एंड आर यू सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 80 90 साल में ये तीनों में सेटिस्फाइड हो जाता है? मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, ऑल परफेक्ट? व्हाट डू यू थिंक? आर यू हैप्पी? डू यू कंप्लीट all your happiness of wealth, relationship, okay, and money? Okay, no, that means spirituality is nothing to do with the relationship, spirituality is nothing to do with money, spirituality is also nothing to do with health. Seriously, both to real spirituality. When there are desire, these three comes. When there is no desire, these three will never come. Understood? समझ में आ रहा है मेरी बात? Understood? So now you will say, Are, how to live the life and this, that. Okay. That's a different thing, but I'm telling you the reality. मैं आपको reality बता रहा हूँ. Okay. Now, what do you mean by soul? What is soul? What is soul? Simple question. Am I asking a difficult question? मैं कुछ difficult question. What is soul? Energy. Okay. And what is soul? Okay. Have you heard about mind? Man, mind. Okay. Body, sharir. Atma, soul. And then what is spirit? There is nothing called a part of divine. झूठ है. There is no is a part of divine. Neither body, mind, soul, कुछ भी, कोई भी part of the divine है ही नहीं. Somebody written part of the divine. No. It is nothing to do with divine. Sorry. The problem is,
reading lot of YouTube's channels. Okay, प्रॉब्लम हो गया. Understood? What is soul? So there is something called as mind, मन, which never tells truth. वो कभी सच नहीं बोलता. There is something called as body, जो शरीर है, and there is something called as soul. So body is a connection between mind and soul. We call as spirit. Now people say spirit and soul is same. Sorry, it is totally different. Okay, we are living in the solar system, Mother Earth, where there are a lot of desires. सपने इच्छा बहुत है, उसमें spirit का कोई काम ही नहीं है. There is only work of the soul. Okay, रियलिटी में यू आर फोकसिंग मोर ऑन द माइंड एंड द बॉडी. प्रॉब्लम यहाँ पे, इफ यू फोकस ऑन द सोल, बेस्ड ऑन द सोल, माइंड एंड बॉडी विल वर्क. हमको लगता है कि माइंड बॉडी की वजह से सोल चल रहा है. नहीं, सोल की वजह से माइंड बॉडी चल रहा है. अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं? यस और नो, प्लीज राइट. यस. व्हाट एग्जैक्टली? सो वेयर आई कम फ्रॉम. अंडरस्टूड नाउ? हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सोल. सो कर्मा इज नॉट देयर इन द माइंड. कर्मा माइंड में नहीं है, कर्मा शरीर में भी नहीं है. कर्मा इज देयर इन द सोल. नाउ आई एम गोइंग डीप डीप. कर्मा इज नॉट देयर इन द माइंड एंड द बॉडी. कर्मा सोल में है. ओके, पहले ये समझ में आया. ओके, सो आपका बॉडी में डिजीज है. इफ यू हैव अ डिजीज इन द बॉडी, नो, द डिजीज इज देयर, द कर्मा इज देयर इन द सोल. रिफ्लेक्शन बॉडी में आ रहा है. अंडरस्टूड? ओके. Now, people say nothing positive, think positive. You are working on the mind. अब mind से you are positing, but it is not touching the soul. You will not get result. समझ में आ रहा है? Just by thinking positive, positive सोचने से आपको अगर लगता है रिजल्ट आएगा, तो कभी नहीं आएगा. झूठ है. ओके, अगर इतना पॉजिटिव होता, इफ दिस पॉजिटिव होता, तो एवरीबडी विल हैव मर्सिडीज एट देयर होम. इफ आई थिंक पॉजिटिव, दैट हैव मर्सिडीज. बिकॉज even if you think positive, there are imprints, karmas are there in the soul. जब तक उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे वे, until and unless you don't work on it, change will not happen. So you don't have to work on the mind, you don't have to work on the body, you have to work on the soul. मैंने हेल्थ एंड वेलनेस का वर्कशॉप लिया था ना, चल रहा है, 25 सेशंस हो गए. ओके, आपको डिजीज क्या होता है? 35% इज जस्ट बॉडी, 65% इज योर थॉट प्रोसेस. हैव यू सीन पीपल आर हेल्दी पीपल बहुत हेल्दी खा रहे हैं, आफ्टर दैट ऑल्सो हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर. यस और नो? यस और नो? द पीपल हु आर नॉट स्मोकिंग but they are getting cancer. The people who are drinking but their liver is super. People who are not drinking, तो भी उनको liver problem, right? So ऐसा कैसे है? बॉडी पे तो काम किया, वर्क ऑन द बॉडी, देन व्हाई आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट? बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन द सोल, यू आर जस्ट वर्किंग ऑन द बॉडी. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अंडरस्टूड? So whatever you do on the body level, it is just temporary. So allopathy works on the body, Siddha works on the soul level. Ayurveda works on mind, body and little bit of soul level. समझ में आ रहा है? Understood? Now, why do we take birth? Birth क्यों लेते हैं? Why do we take birth? Why do we take birth? Birth क्यों लेते हैं? जन्म क्यों लेते हैं? Please answer me in the chat box.
Why do we take birth? Our desires. Okay. See, understand one thing. I'll share with you a biggest secret. Okay. Some people know, some people don't know. The cosmic galaxy, whatever you feel, it is divided into two parts. Okay. For human beings. Okay. There are 27 stars on the left side and 27 stars on the right side. 27 स्टार लेफ्ट साइड में है एंड 27 स्टार. स्टार को हिंदी में क्या बोलते हैं? तारे. राइट साइड में वो तारे वाले तारे नहीं. नॉट स्टार्स विच यू सी. नहीं. The cosmic reality of. So each and every star has one quality. So there are 54 qualities. Left side में 27 quality है, left side right side में 27 qualities. So 27 stars on the left, 27 stars on the right. Okay, so each and every star has certain quality. This 27 stars, 27 star भी तीन part में divided. 999 on the left side, 999 on the right side. Okay, so the first nine are called special stars. So they are called special souls. The soul जो वहां से निकलती, they are called special souls. Okay, other soul also good, but they are not called as special souls. All souls are good. There is nothing called as bad. Okay, इतना समझ में आया? 27 stars on the left side, 27 star on the right side, 27 star 999. ये आपको कोई भी वेदा में भी नहीं लिखा, वेदम में भी नहीं लिखा हुआ है. It's a biggest secret I'm telling you. Okay, it is not even written in books. Okay, so 99 star on the left side, 99 star on the right side. So left side of the 9 stars are called पॉजिटिव स्टार्स, राइट साइड ऑफ द स्टार्स कॉल्ड नेगेटिव स्टार्स. नेगेटिव स्टार का मतलब ये नहीं है कि दे आर डूइंग नेगेटिव वर्क. नेगेटिव स्टार डजंट मीन दैट दे आर डूइंग नेगेटिव वर्क. आई विल एक्सप्लेन लेटर. दे आर आल्सो गुड. सो यू आर born, योर सोल हैज कम आउट इन वन ऑफ दिस 54 स्टार्स. इतना समझ में आया? योर सोल हैज कम फ्रॉम एनी वन ऑफ द 54 स्टार्स. तो जो स्टार से आया है, द स्टार विच योर सोल हैज कम, ओके, उसके क्वालिटीज, स्टार के क्वालिटीज आपके सोल के अंदर आए. अंडरस्टूड? यस और नो? इतना समझ में आया? से फास्ट यस और नो, दे लॉट टू कंप्लीट. मेरे को सेकंड पार्ट करना पड़ेगा. से फटाफट यस और नो इन द चैट बॉक्स. यस, अंडरस्टूड. या, सो यू हैव, योर सोल हैज कम फ्रॉम वन ऑफ द स्टार्स का क्वालिटी से वहां से आई है, और क्वालिटी भी लेके आई है साथ में. जो स्टार से आई है वहां से उसका क्वालिटी लिया है. ठीक है. नाउ we are the part of the universe, cosmos, universe नहीं, cosmos, galaxy, light, merge with the light, जो भी रहेगा. I don't want to go deep into that. Otherwise 2 hours इसमें लग जाएगा समझाने के लिए. The time one desire comes, एक single desire will allow you to take birth in this earth. एक इच्छा दिमाग में, मन में आ गई, one desire in your mind, you are bound to take birth. टू कंप्लीट दैट डिजायर, उस अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम 5 इच्छा और होती है. वी मेक मोर डिजायर, देन मोर डिजायर. सो वी कीप ऑन टेकिंग बर्थ, 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 बर्थ. फॉर सो नो कर्मा, नो डिजायर, नो बर्थ. Desire means karma taking birth. That means all the karmas are there in the soul, not in the mind and the body. समझ में आया इतना? Say yes or no. I am explaining you in a very simple language. I'll be taking the retreat, वहां पे हम practical देखेंगे. Now I'm just, you please explain. I'm just making you explain in a simple way. समझ में आ रहा है? Are you understanding? So, okay, so I had no desire, so no birth. Desire आ गई, desire came, karma came, karma, desire inside the soul, and then based on the desire, वो जो सोल है, सर्च फॉर द बॉडी, वो बॉडी ढूंढती है. ओके, ओके, माय डिजायर इज टू बिकम अ मल्टी मिलियनर. एग्जाम्पल, मैं डिजायर कि मेरे को बहुत मल्टी मिलियनर बनना है. आई वांट टू बिकम अ मल्टी मिलियनर. सो he will take birth based on the nakshatra, astrological nakshatra, the chart which is a millionaire chart. वो टाइम पे ही that soul will take birth. Understood? समझ में आ रहा है?
सो अंडरस्टैंड? ठीक है, सोल इज सोल, soul is soul. Okay, now you will say what is body? So tell me, what is body? What is mind? Okay, so soul, mind, body, they are all energies. Okay, they are all energy, but the storage of all the karmas is in the soul, not in the mind and the body. Okay, there's something called as hardware and software. Okay, the computer hardware है, Microsoft जो भी हम आते, that is a software. All the data is there in the software, not in the hardware. Okay, समझ में आया? Okay, what are cells made up of? What are organs made up of? Body is made up of cells and organ. What is cells and organ made up of? Energy. Baba, everything is energy. Atom. What is atom? Proton, neutron, electron. Okay, so if you talk Paresh भाई, atoms, atoms के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन. उसके अंदर क्या है? E is equal to mc square. E is equal to mc square, which I have not proved. It is proved by the scientist. कौन किसने scientist? Who is the scientist? E is equal to mc square. किसने सुना है ना? ओके, सो द आंसर आपके अंदर ही है. तो बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड द ऑर्गन्स. ऑर्गन के अंदर एटम्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है. उसके अंदर क्या है? इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर. एब्सोल्युटली आइंस्टाइन. सो इट हैज बीन प्रूव्ड. सो एवरीथिंग इज एनर्जी. तो सब कुछ एनर्जी, इवन सोल इज एन एनर्जी. आप समझ में आ रहा है? सो प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट कॉन्सेप्ट. Okay, so E is equal to mc square. So everything is energy. Okay, you and me are energy. तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो. नो बर्थ, नो सोल, नथिंग एग्जिस्ट. बर्थ ले रहे, इच्छा आ गई है. इच्छा, डिजायर. ओके, डिजायर मीन्स कर्मा. दैट कर्मा goes inside the soul, and based on your desire you search for a body and then you take birth. Okay, so जो सोल, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज. द सोल व्हेन इट गोज इनसाइड, नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. जब सोल बॉडी के अंदर जाती है, व्हेन द सोल गोज इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्टिकुलर फीमेल, ओके, इट टेक्स 3 months. 3 months के बाद अंदर जाती है. ओके, एंड व्हेन इट गोज इनसाइड द वूम ऑफ अ पर्टिकुलर पेरेंट, 3 to 4 months के बीच में, ओके, देन प्राणा एनर्जी स्टार्ट. Prana energy start. Okay, and when the first breath it takes, that the prana energy start. So that's why a woman takes 9 months. Why 9 months? To activate all the chakras. So if a baby want to be fully developed, okay, 9 months के ऊपर ही उनका बर्थ होना चाहिए. You should take birth only after 9 months. 9 months premature baby का fully birth नहीं होता. Okay, so fully developed spiritual baby always born after 9 months. Of course, there are certain rare cases, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. Okay, now once it take birth, once it goes inside the womb of a parent, okay, parent के अंदर चला गया, okay, फिर क्या करता है? It feel, it take first breath, earthly experience उसको feel होता है. ठीक है ना? Understood? Initially 9 months होने के बाद, 9 months होने के बाद, 9 months होने के बाद, when it comes out, आपको पता है first 3 to 6 months the baby can't see. She sees only black and white. She feels the aura, nothing else. उसको सिर्फ aura ही महसूस होता है, बाकी कुछ महसूस नहीं होता. Okay, बाकी कुछ महसूस नहीं होता, सिर्फ aura महसूस होता है. ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको देखना चालू होता है. स्लोली स्लोली she tries to see. Okay, she tries to see. Now based on the karma, based on the desire, उसकी लाइफ चलती है. Okay, she takes birth or he takes birth, ग्रोथ होता है. Okay, whatever karma she does or he does, अच्छा बुरा जैसा कोई कर्मा नहीं है. ओके, अच्छा एंड बुरा सब मिक्स हो जाता है. ठीक है ना? एंड जो भी है उसका डिजायर एज होता है, एट एज ऑफ 60, 70, 80, 90 डाइस. ओके, एंड देन इट गोस, फिर वापस से बर्थ लेता है. तो जर्नी ऑफ द सोल आप समझ में आया. ऑल द कर्मास आर देयर इन द सोल. नो कर्मा, नो सोल,
कर्मा देर तो सोल है, नो कर्मा नो सोल। ओके, बॉडी चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन योर डिजायर, सोल इज द सेम, सोल इज कांस्टेंट, बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, माइंड इज नॉट कांस्टेंट, सोल इज कांस्टेंट। ओके, सो हार्डवेयर जो लैपटॉप होता है ना, एचपी, लिनोवो, ओके, दैट इज नॉट कांस्टेंट। ओके, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट तो वही सॉफ्टवेयर रहेगा ना, वो सब पीसी में जाएगा, वो कांस्टेंट है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ सिया, नाउ आफ्टर डेथ ये लिबरेशन ये वो ठीक है। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, बिफोर बर्थ डिजायर आ गया, टेक बर्थ, देन इट टेक एंटर इनटू द फिजिकल लाइफ, वो फिजिकल लाइफ में एंटर करती है। उसके बाद एक बार फिजिकल लाइफ में एंटर हुआ, देन ही विल रूल्स, he will do all the rules and regulation as per the human norms, relationship, joy, suffering. Baby doesn't know what is happiness, what is sadness, what is mama, what is papa, what is dada dadi, grandfather, grandparents। ये सब समझ में नहीं आता है सोल को। ओके, वी पुट इट इनटू द माइंड, ओ दिस इज फियर, दिस इज इनसिक्योरिटी, ओ दिस इज हस्बैंड, यू आर फीमेल, दैट इज मेल। सोल स्पिरिचुअलिटी डजंट अंडरस्टैंड, वो हम डालते हैं अंदर। सो जो भी हम डालते हैं अंदर ना, थ्रू द एक्सटर्नल विच इज नॉट रियल, विच डजंट हैव एनी पावर। द थिंग विच इज इनविजिबल हैज गॉट इनफाइनाइट पावर। और जो विजिबल है, जिसने हमने नाम दिया है, उसके अंदर पावर नहीं है, वो उल्टा डर पैदा करता है, फियर। एंड बिकॉज ऑफ फियर वी क्रिएट मोर कर्मास। ओके, ये तो रियलिटी है। सो वी डू ऑल दिस जर्नी। ओके, और जर्नी के बाद जब डेथ आता है तब निकल जाता है, प्राणा एनर्जी बंद हो जाती है। ओके, ना प्राणा एनर्जी बंद होने के बाद क्या करती है क्या नहीं करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना, याद देखना। जब मरते हैं हम, ओके, वेन एवर वी डाई, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेन एवर वी डाई, ओके, द टाइम वी डाई, देर आर सर्टन एग्जिट। एग्जिट तो है, एग्जिट, एग्जिट मतलब जहां से सोल बाहर निकलती है, फ्रॉम वेयर द सोल गोज आउट। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जिट वेयर द सोल गोज आउट। बेस्ट एग्जिट इज इफ शास्त्र, जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, वहां से अगर आपका सोल निकला, समझ लेना दैट इज योर लास्ट बर्थ, यू विल नॉट बी टेकिंग एनी अदर बर्थ देयर आफ्टर। दैट मीन्स योर कर्मा इज जीरो एंड एवरीथिंग इज जीरो, यू विल नेवर टेक बर्थ वंस योर सोल कम आउट ऑफ द क्राउन चक्र और सहस्त्र चक्र, ये एग्जिट वाला लिबरेशन, मोक्ष हो गया। ओके, लेकिन आईज से अगर आपका सोल निकला, ओके, आप देखो ना आईज खुली रहती है मरने के बाद, योर आईज आर ओपन व्हेन समबडी डाइज। ओके, दैट मीन्स अभी भी अटैचमेंट था, स्मॉल इमोशनल अटैचमेंट था। सो नेक्स्ट बर्थ जिसके साथ अटैचमेंट था ना, अटैचमेंट, इच्छा, अटैचमेंट, उसके साथ टेक बर्थ। समझ में आया? ओके, थ्रोट से निकलता है, मुंह से निकलता है, ठीक है ना। तो थी बोलना चाहते हैं, नहीं बोल पाए, तो हिल टेक बर्थ। ओके, हार्ट से निकलता है, नेवल से निकलता है, एंड नीचे की तरफ से जहां पे हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जहां से हम टॉयलेट करते हैं, वो एग्जिट, ठीक है ना। ओके, दैट इज कॉल्ड नॉट अ गुड एग्जिट। अगर वो एग्जिट है मतलब फिजिकल डिजायर्स, बहुत इच्छा थी, कार्मिक कार्मिक भी बहुत है, मटेरियल अटैचमेंट्स बहुत है, यू हैव लॉट ऑफ मटेरियल अटैचमेंट, इफ एंड यू वांट टू फुलफिल ऑल दिस मटेरियल अटैचमेंट एंड फिजिकल डिजायर्स एंड एवरीथिंग, सो योर सोल कम आउट फ्रॉम दैट बॉटम पार्ट। कितना इंटरेस्टिंग है ना, सो अमेजिंग इट इज, कितना अमेजिंग है। ओके, सो इफ आई टेल यू इन अ समरी, इफ योर एग्जिट पॉइंट ऑफ द सोल आफ्टर डेथ, मरने के बाद, कम्स आउट ऑफ द क्राउन, शास्त्र से निकलता है, ओके, दैट मीन्स इज योर लास्ट बर्थ, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आई से निकलता है इमोशनल अटैचमेंट, माइंड इमोशंस है, तो इमोशनल कॉन्शियसनेस। थ्रोट है तो क्रिएटिव, हार्ट है तो डिवोशनल, ओके, नेवल से निकला तो पर्सनल अचीवमेंट, ईगो है, वो ईगो को, सो यू बिकम लाइक अ पॉलिटिशियन और समथिंग लाइक दैट। सेक्रल है तो डिजायर्स एंड अटैचमेंट्स, एंड मूलाधारा से अगर निकल गया एग्जिट, तो इंस्टेंट सर्वाइवल के लिए जियोगे। अंडरस्टूड? यस और नो? सो इफ
If this is your last birth, that means your soul will come out from where? From the crown chakra, from the Sahasrara chakra, from the Brahmaran, from the exit. Understood? So amazing, no? कितना amazing है. There is no role of the spirit, huh? Here. लोग spirit बोलते हैं, spirit आ गई, ये spirit आ गई. See, please understand, this universe is very secret. Next topic I'll be taking on universe. It's a universe is full of secret. Your galaxy is full of secret. हम एक human being is one of the entity. There are thousands of entity. Okay, so their soul is different. Okay, aliens is one of the entity. Jinn is one of the entity. Angels are one of the entities. Okay. Rakshas bolte, that is one of the entities. So there are thousands of entities. I don't want to focus much on that. Okay. But I'm just telling you, there are thousands and thousands of entities. Okay. There are thousands of entities. You need to understand there is nothing to do with our entity, their entity. No. Totally different. Understood? Now one more thing. What happens after we die? What happens after we die? Once we die, जब हम मरते हैं, okay, we stay close to our family for first 3 days. That's why I request people कि कोई भी इंसान मरता है ज्यादा रो मत, उनको पेन होता है. So 3 days तक they are there with us. The soul after death, they are there with us. वो अपने साथ में रहते हैं, connected with the memories and home and everything for first 3 days. Please understand. Okay, understood? First 3 days they are there with us. उसके बाद from 4th day to 9th day they get detached with the family. Okay, and they see all the karmic impressions. मतलब ये life में what they have done, good, bad, but with pure, but with love. Okay, with not aggression. मतलब गुस्से से नहीं देख रहे या एंग्री से नहीं देख रहे, मैंने इसको मार दिया, I've killed this or I've done good or bad. No, they do all the flashback. Okay, from 4th day to 9th day, the soul. Okay, and then after 9th day till 13th day, okay, what to do, when to take birth, I need to take birth or not, okay, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना, ये सब डिसाइड करता है. एंड देन आफ्टर 13th डे द सोल टेक्स अ डिसीजन क्या करना है. ठीक है, अंडरस्टूड? So normally 13 to 16 days maximum, he complete everything. See, yes or no, have you understood? Soul का journey, थोड़ा थोड़ा, 10% or 5% of what I've explained. So even they say that soul, इंसान मर गया, वो सोल रहती है 3 दिन तक. It stays with you for 3 days, connected to the family. From 4th to 9th day, he'll review everything. He get first detached with the family and he review what are the things which has happened. Okay. And then from 10th day to 13th day, he'll take a decision when to take birth and which karma I need to clear in next life. A decision लेता है and then it takes the birth. Understood? See, so amazing, no? People say that वो दरवाजा बंद हो जाता है 72 hours में, नहीं हुआ तो आत्मा भटकती नहीं, झूठ है. It's lie that if you don't go up within 72 hours, then your soul becomes, this one and that one. No. Okay. So have you understood this? Say yes or no. Okay. Now, next. What is the difference between meditation and samadhi? What is the difference between meditation and samadhi? Have you heard about meditation? Yes or no? Now you'll give me the answer. What is the difference between meditation and samadhi? What is the difference between meditation and samadhi? Please write something. What is meditation? What is meditation? What is meditation? Simple.
सी रादर देन मी स्पीकिंग मजा नहीं आएगा आपको। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज राइट एंड रॉन्ग, प्लीज एक्सप्रेस व्हाट डू यू मीन बाय मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों करते हैं? व्हाई वी डू मेडिटेशन? व्हाई वी डू मेडिटेशन? अवेयरनेस, ओके। ओके, एंड व्हाट इज समाधि? Samadhi is also awareness. Okay, I'll explain you. See now. Meditation is what? Dhyana. Practicing the process to calm the mind. Awareness still observe through thoughts or object or focus. मतलब मेडिटेशन करने के बाद भी आप हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, योर अवेयरनेस इज इंक्रीज, बट योर आइडेंटिटी स्टिल प्रेजेंट, कि मैं बैठा हूं, आई एम थिंकिंग, आई एम स्टिल प्रेजेंट, आई एम स्टिल प्रेजेंट। Okay, it purifies the mind and it prepares to go at the higher level of consciousness. Okay, मेडिटेटिंग में सिंपल मीनिंग, मेडिटेटिंग में यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इट, आप क्या कर रहे हैं वो पता चल रहा है कहीं ना कहीं। आप ब्रीदिंग ले रहे हैं, फोकसिंग ऑन ब्रेथ। ओके, एग्जाम्पल मैं देता हूं, ठीक है? अंडरस्टूड ना? व्हाट इज समाधि? समाधि इज स्टेट ऑफ कंप्लीट एब्सॉर्प्शन। माइंड बिकम्स टोटली स्टिल, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मैं हूं। ओके, देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड एक्सपीरियंस, मतलब आप खुद और अनुभव कर रहे हो, उसमें कोई अंतर नहीं है, मर्ज हो जाता है। मैं हूं वो मैं भी निकल जाता है। मेडिटेशन में ईगो इज देयर, इन समाधि देयर इज नो ईगो। सोल मिक्स विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सिंपल, जब मेडिटेशन खत्म हो जाता है तब समाधि स्टार्ट होती है। ओके, दैट मीन्स, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ओशन, ओशन, ओशन है ना, ओशन, नदी नहीं, नदी नहीं बोलते, नदी बोलते ओशन को, ओशन बोलते हैं। मेडिटेशन का मतलब आप वॉचिंग द ओशन, एंड समाधि मतलब यू मर्ज विद द ओशन, यू आर बिकमिंग द ओशन इटसेल्फ। सो मेडिटेशन इज ध्याना, समाधि इज एनलाइटनमेंट। मेडिटेशन इज द पाथ, समाधि इज द डेस्टिनेशन। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है अभी डिफरेंस? So this retreat which I'll be taking in 28 March will be not doing much meditation. We'll go into samadhi state. We'll learn how to do samadhi. So that is the biggest part which we'll be doing. I will be doing it for the first time. मैं पहली बार करने वाला हूँ, ठीक है ना? आपको सिखाने वाला हूँ, करने नहीं वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? So understood? So once you reach the samadhi, that means you have come out of the birth and death cycle. You have completed the samadhi. ऐसा नहीं कि समाधि में बैठ गए तो खत्म हो गया, वो प्रैक्टिस करना पड़ता, ठीक है? यू नीड टू डू सर्टेन प्रैक्टिसेस। अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड समाधि? यस और नो? कितना इंटरेस्टिंग है। ओके, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस? आप जो बोलते हैं ना, आई एम हैप्पी एंड सैड, हु डिसाइड्स? यू योरसेल्फ डिसाइड। देन व्हाई डू यू ब्लेम गॉड? गॉड से मांग के क्या होगा? God has nothing to do. Bhagwan has nothing to do with your past, present, future, your karma. No. If you think by praying God, God will माफ कर देगा, God will delete your karma. झूठ है. This is the biggest lie. God has nothing to do with your karma. You yourself is responsible for your karma and you yourself will come out of the karma. ये तो पक्का है, 100% है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? There is nothing called as सत्य. There is nothing called as truth. Doing nothing in life is the real amazing thing, but we are doing something. That's the major problem. Understood? What is satya? There is nothing called as satya. आपके लिए जो सत्य हो मेरे लिए सत्य नहीं हो सकता है, मेरे लिए जो सत्य हो आपके लिए सत्य नहीं हो सकता है। द ट्रूथ इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्सपीरियंस। A person who is working in the stock market, for him it's a business. For other people it can be like a what we say, casino, जुआ है। Okay, so some people stock market is good, for some people stock market is bad. For some people gold business is good, for some business diamond business is good, for some business diamond business is bad.
ओके, सो सत्य इज डिफाइंड बाय एन इंडिविजुअल. In fact, in universe, there is nothing called as सत्य. एक होता है मानना, एक होता है जानना. मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सत्य नहीं है, क्योंकि वो मेरा अनुभव है. जब तक आप अनुभव नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा. लेकिन जो बुक भी लिखता है अपने, वो उसका सत्य है, वो आपका सत्य नहीं है. ईच एंड एवरी सोल इज यूनिक एंड डिफरेंट, सो सत्य ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग एट एवरी मोमेंट. Today your satya will be different. Tomorrow you will get more experience and your truth will be different. Satya means truth. So truth keeps on changing based on your experience. Am I right or wrong? Tell me. Searching for the truth and truth and truth, and later you will understand there is no truth only. So once you understand there is no truth, you will go into the samadhi state. The time you are in truth, you will be into meditative state. Understood? समझ में आ रहा है? हु इज दिस नेम ओप्पोजी? उनका नाम क्या है? मैं नाम से पुकारना चाहूंगा. गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. वेरी नाइस. आई लव पीपल व्हेन दे आस्क मी क्वेश्चन. कितना क्लैरिटी हो जाता है. अंडरस्टूड. So if you try to find the truth, you are going away from your life. Don't search for truth. Yes, शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. मैं आपको जब खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा. ठीक है ना? So good, understood. Any other question about the journey of the soul? So please understand, when there is karma, your soul is existing. There is no karma, no soul. Okay, body keeps on changing. सोल रिमेन्स द सेम अंटिल द कर्मा इज देयर. जो कर्मा है तो सोल है, कर्मा नहीं तो सोल है. सोल नहीं. और जब यू रीच इनटू द जीरो कर्मा, एनलाइटन मोक्ष, वहां पे माइंड बॉडी सोल चैप्टर खत्म. फिर चालू होता है चैप्टर ऑफ द स्पिरिट. दैट इज द चैप्टर विच स्टार्ट रोल ऑफ द स्पिरिट. So body is made up of 5 elements, Panchatattva. The body is made up of cells. Okay, the karmas are there in the soul, which is there in the cell, and सब कुछ है. Okay. कैलाश चंद्रवंशी, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, गुड. सो नाइस. सो समाधि स्टेट क्या होती है, योगिक क्रिया क्या होती है, सिद्ध ऋषि मुनि क्या सिखाते थे, वो मैं रिट्रीट में सिखाने वाला, जो 28 मार्च से 1 अप्रैल तक है, फॉर 5 days. ओके, बहुत अमेजिंग हो. मैं साल में एक बार ही लेता हूँ, बट दिस टॉपिक इज टोटली डिफरेंट. हाउ टू रीच द समाधि स्टेट, ऋषि मुनि क्या करते थे, सिद्धर क्या करते थे, हाउ टू बैलेंस इंग यांग एनर्जी एंड अंडरस्टैंड. सो 5 दिन में सीखेंगे. अगर जिनको अटेंड करना है वो कर सकते हैं. मैं 30 लोग से ज्यादा नहीं लेता हूँ. ओके. जिनको इसके बारे में और जानकारी लेनी है, मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं. ओके, सो आई गिव यू मोर नॉलेज अबाउट इट. ओके, वेरी रीजनेबल. खाना पीना रहना सब कुछ उसमें आ जाता है. इट्स रियली अमेजिंग. ओके, बट ओनली आई एम द पर्सन हु इज टॉकिंग डेली फॉर 12 hours. मैं 10 से 12 घंटा का बोलता हूँ. जो लोग मेरे रिट्रीट पहले अटेंड किए हुए हैं उनको पता है. सो आई स्पीक फॉर 12 hours. सो दिस रिट्रीट विल बी 90% प्रैक्टिकल, ओनली 10% थियरी. ओके, सो 90% प्रैक्टिकल होगा. तो बहुत सी चीजें हम सीखेंगे. ओके, सो गुड. नाउ any question, is somebody wants to ask any question, please ask. Anybody wants to ask any question, पूछ सकते हैं regarding to soul journey. Somebody wants to ask any question, can ask. क्वेश्चन पूछिए. मैंने बंद कर दिया. पूछना बहुत जरूरी है. और क्या, अगर कोई मन में डाउट है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं. रोहित जी को पूछना है क्वेश्चन. सी अंडरस्टैंड, डरो मत. फियर है ना, फियर, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. इट ड्रेन्स योर एनर्जी. ऑरा ये सब बाद में आता है. सोल के हिसाब से आपका ऑरा डेवलप होता है, कर्मा के हिसाब से आपका ऑरा डेवलप होता है.
कैन यू प्लीज समाधि, हाँ कैन यू प्लीज समाधि मतलब मैं समझा नहीं। एक्सप्लेन समाधि। सी समाधि इज अ स्टेट वेयर आपका बॉडी आप में नहीं रहता, यू गेट मर्ज विद द कॉस्मोस, द यूनिवर्स, दैट इज अ स्टेट वेर यू मर्ज विद द कॉस्मोस विद द यूनिवर्स, यू आर नॉट देयर। आपका ईगो मतलब मैं हूं, दैट मैं comes out of it, you are merged with, you are the ocean itself, okay? In meditative state, हाँ, you are sitting, you are observing something, you are observing the breath, सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, वो है meditative state. Slowly from the meditative state you will reach the samadhi, okay? So the start part is the meditative state. But people क्या होते हैं, एक meditation करना, एक meditation में जाना, हम मेडिटेशन करते हैं इसके लिए जा नहीं पाते। अंडरस्टूड? एक होता है मेडिटेशन डूइंग, एक होता है मेडिटेशन गोइंग, गोइंग टू मेडिटेशन, एक डूइंग मेडिटेशन। वी ट्राई टू डू मेडिटेशन, कैसे मेडिटेट? क्लोज योर, आंखें बंद करो, चक्र पे ध्यान दो, लम वम वम बोलो, दैट इज नॉट मेडिटेशन, वो क्रिया है। प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ नहीं करना वो ध्यान है, कुछ कर रहे हैं वो ध्यान नहीं है, वो क्रिया है। अंडरस्टूड? नॉट डूइंग इज मेडिटेशन, डूइंग इज नॉट मेडिटेशन। और हम लोग करते हैं, इसके लिए जा नहीं पाते। समझ में आया? लोगों को लगता है अरे मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ, विचार आते हैं, आने चाहिए विचार, क्यों नहीं आएंगे? आएंगे विचार, थॉट्स आएंगे, बट प्लीज अनम्यूट। ओके रोहित जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यस, रोहित जी ने एक क्वेश्चन पूछा। रोहित जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, बट आपकी आवाज आपका क्लास तो ज्वाइन, हाँ आवाज तो बोलिए आना बोलिए। चाहिए। आ रही है? आपका क्लास तो मैं डेली डेली ज्वाइन नहीं, मतलब कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, दुकान में रहता हूँ मैं। नो प्रॉब्लम। तो अभी क्या हुआ ना सर, मेरे को तो याद रहता है सांस लेना है, दिन भर वही याद रहता है सांस लेना है, बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हम्म। गाड़ी चला पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट गाड़ी में दे दिया, पूरा सांस ले रहा हूँ, उस पॉइंट ऑफ द टाइम पे मेरे को कुछ सामान खरीदना है, वो मैं भूल जा रहा हाँ देखो एक चीज है, ओके ठीक है, और और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो फिर मैं एक साथ में उसका आंसर देता हूँ। हूँ। अभी तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या हुआ ना, पहले पहले कोशिश करना पड़ता था डीप ब्रीदिंग, अभी इतना अच्छा डीप ब्रीदिंग हो रहा है वेरी कि गुड। मेरे को और कोशिश नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली डीप ब्रीदिंग जाता है आता है। मतलब वो एक कोशिश का टाइम का एक्सपीरियंस अलग है और अभी का एक्सपीरियंस अलग है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। रोहित जी तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये तो पहला प्रोसेस है जो कि बहुत अच्छा कर रहे हो। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टार्टिंग प्रोसेस इज वी हैव टू फोकस ऑन द ब्रेथ। ब्रेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच बैलेंस माइंड बॉडी एंड सोल, मतलब मन शरीर एंड आत्मा का कनेक्शन है वो है सांस। माइंड बॉडी एंड सोल, द कनेक्शन ऑफ ऑल थ्री इज योर ब्रेथ, ओके? अगर आप ब्रेथ प्रॉपरली नहीं ले रहे, इफ यू आर नॉट टेकिंग ब्रेथ प्रॉपरली, मन और दिशा में जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन, योर माइंड विल गो इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, शरीर डिफरेंट डायरेक्शन, सोल डिफरेंट डायरेक्शन। इफ थ्री थिंग्स गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन, तीन चीज अलग दिशा में जाएंगे, कभी बैलेंस नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, चाहे हेल्थ का प्रॉब्लम, मनी का प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम। ओके, दैट ब्लिसफुल स्टेट नहीं आएगा। अगर मेन रोल, हमारा मेन रोल होना चाहिए मन शरीर आत्मा को बैलेंस करना, टू बैलेंस माइंड बॉडी एंड सोल, एंड इट कैन ओनली बी बैलेंस्ड वंस यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन ब्रेथ, और ब्रेथ के ऊपर काम करते हैं। इसके लिए ऋषि मुनीस, द एंशियंट ऋषिज डजंट फोकस ऑन मेडिटेशन, दे फोकस ऑन ब्रेथ। वंस यू फोकस ऑन ब्रेथ, मेडिटेशन एंड समाधि ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑफ कोर्स समाधि में यू नीड सर्टेन स्टेप्स टू डू एक्स्ट्रा, बट मेन इज योर ब्रेथ, मेन ब्रेथ है। ओके, अंडरस्टूड? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर टेकिंग 15 ब्रेथ, 15 ब्रेथ एक मिनट में। जितनी गहरी ब्रेथ, जितना कम ब्रेथ लोगे, मतलब गहरी सांस लोगे, उतनी उम्र भी बढ़ेगी, उतनी चेतना भी बढ़ेगी, और समझ लेना आपके कर्मा कट रहे। तेज सांस लेंगे, फास्ट सांस लेंगे, ओके, फास्ट सांस लेंगे तो समझ लेना कर्म ज्यादा है, बीमारी भी ज्यादा आएंगी, विचार भी ज्यादा आएंगे। ओके, आप देखोगे व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, खुश रहते हो, तो पता भी नहीं चल रहा है, यू डोंट इवन फील दैट यू आर टेकिंग ब्रेथ व्हेन यू आर हैप्पी। बट व्हेन यू आर स्ट्रेस, जो गुस्सा होता है, यू टेक लॉट ऑफ ब्रेथ, दैट मीन्स आपके विचार इज कनेक्टेड टू द ब्रेथ, विचार इज कनेक्टेड टू कर्मा, सो कर्मा इज कनेक्टेड टू ब्रेथ। प्लीज ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार ब्रेथ पे, सांसों पे कंट्रोल आ गया, if once you know how to control on your breath, everything will fall in place very easy, सब कुछ सब इजी हो जाएगा।
ठीक है, अंडरस्टूड। और एक छोटा क्वेश्चन है, ओके पूछो पूछो। वापस अनम्यूट करता हूँ, आपको अनम्यूट किया, यस। हाँ, जैसे मैं किसी को मतलब कभी भी खाना खाता हूँ ना, पहले दो निवाला तीन निवाला मैं एकदम कॉन्शियसनेस के साथ मुंह में कैसे घुल रहा है, कैसे जा रहा है। राइट। तो एक चॉकलेट मेरा दुकान में, मैं चॉकलेट रखता हूँ, सबको देता हूँ। वो चॉकलेट मैं मुंह में जैसे ही लिया, हम्म। वो मुंह में जैसे ही मैं ध्यान दिया ना कि मुंह में लेना है, वो उसको पूरा फील करना है, उस फील करते टाइम सांस लेने का भी मन नहीं करता है। मतलब वेरी मैं अगर गुड। सांस में जाऊँ तो या तो दिमाग सांस में जा रहा है, नहीं तो चॉकलेट में आ रहा है। मैं राइट। किसमें देना है, समझ गया। समझिए समझिए। बहुत अच्छा है। हर एक चीज जो करते हैं, वॉट एवर थिंग्स यू डू, उसको 100% देना है, उसको 100% देना है। दैट इज मेडिटेशन, बट दैट इज नॉट समाधि, दैट इज मेडिटेशन। अगर आप खाना खा रहे हो तो पूरा फोकस खाने में। अगर समझो मैं ये गरम काढ़ा पी रहा हूँ एग्जाम्पल, तो पूरा फोकस मेरा काढ़े पे होना चाहिए। ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, मेरा पूरा फोकस टॉकिंग पे होना चाहिए। व्हेन आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ, तो पूरा फोकस चलने में होना चाहिए। ना माइक से वो सुनना है, ईयरफोन से, ना फोन पे बात करनी है, नहीं। दैट इज मेडिटेशन। तो समझ में आया आपको सोल के बारे में जितना मैंने बताया। चलो रिवीजन करते हैं। तो सोल कहाँ पे है? सोल होती नहीं है पहले, डिजायर इच्छा हो गई तो सोल आता है। हमारे जो भी कर्म है, वट एवर कर्मास आर देयर, इट इज देयर इन द सोल, नॉट इन द माइंड एंड द बॉडी। ओके, पहले ये चीज समझ लेना। इच्छा आ गई तो हम कोई स्टार में से निकले, जो मैंने एक्सप्लेन किया था 27 या 27 स्टार्स, उसमें से आप निकले। इच्छा आ गई, देन जो इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी डिजायर है, ओके, बेस्ड ऑन दैट यू विल फाइंड अ पर्सन womb, and at third month या fourth month that soul will enter into the mother's womb and will start taking breath, जिसको बोलते प्राणा। ओके, वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने ये भी बताया था, नॉर्मल लाइफ जिएगा, इच्छा जो भी। सी अंडरस्टैंड, सोल डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, सोल डजंट हैव एनी लैंग्वेज, बट वी मैनिपुलेट अवर माइंड। हम मन को मैनिपुलेट करते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, डू दिस, डोंट डू दैट, एग्जाम में फर्स्ट आना है, यू नीड टू कम फर्स्ट इन द एग्जाम, यू नीड टू डू बिजनेस, यू नीड टू जॉब। सोल डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, सोल डजंट अंडरस्टैंड मनी, सोल डजंट अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। वो हम डालते हैं, वो माइंड का काम। तो जितना माइंड को प्रोग्रामिंग, उतना डिफिकल्ट सोल को समझने के लिए। सो यू नीड टू डी प्रोग्राम इट। ओके, सो जब मरने का वक्त आता है, आई एम जस्ट गिविंग द समरी, मरने का वक्त आता है, तब क्या करते हैं? आपका सोल निकलती है। सोल अगर ब्रह्मांड से निकली, एग्जिट है, अलग अलग एग्जिट है, देयर आर डिफरेंट एग्जिट। इफ द सोल कम्स आउट फ्रॉम दिस ब्रह्मरंध्र और सात सात चक्र, दैट मीन्स दैट इज योर लास्ट बर्थ। आई से निकलती है, यू विल टेक सम बर्थ। मुंह से निकलती है या नीचे से निकलती है तो मटेरियलिस्टिक डिजायर बहुत ज्यादा है, तो बहुत बर्थ लेने पड़ेंगे। सो बेस्ड ऑन योर सोल एग्जिट, यू टेक बर्थ। नाउ फर्स्ट 3 days आफ्टर योर सोल, योर बॉडी डाइज, आप मर जाते हो, 3 days वो फैमिली के साथ में ही रहती है। दैट्स वाई यू शुड नॉट क्राई। वो अवेयरनेस देखती है कौन क्या कर रहा है, बट उसको कोई सुख दुख नहीं होता है, वो सिर्फ देखता है। फर्स्ट 3 days, फोर्थ टू नाइन्थ डे में पूरा रिवीजन लेता है, दिस बर्थ एंड प्रीवियस बर्थ, सो मेनी बर्थ, so ओहो, what I have done in this life and the previous life and everything. That 4th to 9th day होता है after the death. From 9th day to 13th day, okay, he decides कि अभी बर्थ लूँ कि कौन सा बर्थ लूँ, which birth should I take, how many karmas in next birth I have to come across and play with that karma। और तो ये सब करता है 9 to 13, and then he or she takes a decision। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? दिस आई एक्सप्लेन इन डीपली इन नेक्स्ट 1 hour, जो मैं भी 5 minutes में आपको समझाया। नाउ द कर्मास आर देयर इन द सोल, नॉट इन द बॉडी एंड माइंड। तो बॉडी में जो डिजीज आता है ना, इट इज नॉट बॉडी वाला डिजीज, इट इज सोल वाला डिजीज। यू हैव टू फोकस ऑन द सोल, नॉट ऑन द बॉडी। दैट्स वाई फूड खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, उसका इफेक्ट ओनली 35%। 65% इज your thought process and emotion, which is your karma। So thought, emotions are connected to the soul। okay, सिर्फ खाना पीना खाने से बॉडी ठीक रहेगी, बट जरूरी नहीं कि 100% ठीक रहेगी। बिकॉज आई गिव यू द एग्जाम्पल, पीपल हु स्मोक, they don't get lung cancer, people don't smoke, they get cancer and many other things। so इतना हेल्दी खाने के बाद भी प्रॉब्लम क्यों आई? बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द एक्सटर्नल पार्ट, नॉट ऑन द इंटरनल पार्ट। सो इफ यू वांट टू बी हेल्दी, जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स,
सेल्स, हर एक सेल इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर एनर्जी। उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी, यू नीड टू कीप द सेल, देयर आर 1 लाख करोड़ 1 मिलियन करोड़ सेल्स इन आवर बॉडी। अगर उसको हेल्दी रखे, सुपर, द मोर द सेल्स आर हेल्दी द मोर योर अवेयरनेस इंक्रीज। ओके, सो अगर 100% हेल्दी हो गया, दैट मीन्स देयर इज नो कर्मा एग्जिस्ट। द सेल्स आर हेल्दी, नाड़ीज आर हेल्दी, चक्रास आर हेल्दी, kundalini and everything will become automatically, सब कुछ perfectly. So don't focus on the chakras or the nadis, focus on the cells. Understood? समझ में आ रहा है? So ultimately you say happiness, sadness, this is all the state of mind, that is not truth. ये झूठ है. Say I'll be happy, then I'll be truth, I'll get this, then no, you'll never be happy. Okay, in spirituality, आध्यात्मिकता में there is nothing called as happiness and sadness, सच, झूठ, true, false, lie, relationship, money. Please, spirituality soul doesn't understand anything. This is made by humans. Okay, soul doesn't understand anything. Sukh, dukh, happiness, sadness, soul doesn't understand. Okay, understood? So good. Any other question? बहुत इंटरेस्टिंग था. So yes, in retreat में I'll be not talking much on the meditation. I'll be talking only 10%, 90% will do practical, will do how to touch the samadhi, samadhi की practices करेंगे, many such things. अगर possible है तो आ जाइए. I normally take once in a year retreat. Any other question? Any other question, please ask. जल्दी से, it's already 10:30. In spirituality, there are certain discipline. You need to sleep early. जल्दी उठना है, जल्दी सोना है. अगर आप जल्दी नहीं उठ पा रही, if you're not getting up early, that means there is lot of things which is there in our mind. मन में बहुत कुछ चल रहा है. It can be anything. आपका खुद के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, कुछ भी चलेगा. कुछ भी करना है तो will not get up early. Don't think. प्रॉब्लम क्या है? स्टेइंग इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में रह के हम पास्ट का सोचते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं, कल का सोचते हैं. इसके लिए वो मोमेंट यू आर नॉट लिविंग 100%. कल का कल देखा जाएगा, ऐसे सोच के सो जाओ, ऑटोमेटिकली आप जल्दी उठोगे. ट्राई करो. अगर व्हेन यू स्लीप, अपनी सांसों पर ध्यान देके सोना है. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ. ब्रेथ कैसे लेना है, कैसे चल रही है, बस ऐसा करके सो जाओ, सुपर नींद आ जाएगी आप. ठीक है. नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट समथिंग सीक्रेट अबाउट द यूनिवर्स. सो हाउ, व्हाट आर यूनिवर्स, हाउ इज यूनिवर्स फॉर्म. यूनिवर्स में सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही रहते हैं कि बहुत से लोग रहते हैं. सो देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जातियां which stays in the universe, not just humans. Are we are connected with that particular other people. So ये सब चीज हम सीखेंगे, समझेंगे. ठीक है. So good. Thank you very much. Any other question if you want to ask in personal, you can ask me. कोई problem नहीं है. Okay. So मेरा number है ये 7738538532. So you can ask me any question. I'll be happy to reply you. ठीक है. So thank you very much and see you soon. जल्दी मिलते हैं next 3-4 days. अच्छे से टॉपिक, यूनिवर्स के टॉपिक पे लेके आऊंगा. ठीक है. चलो सर. सोल एक आर्य है, बड़ी में अनेक क्या कारण है. सर जी, आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझा. सोल एक एनर्जी है, बड़ी, हाँ एक एनर्जी है सोल. अनेक में आने का क्या कारण है? सोल में आने का क्या कारण है? सोल आने का कारण है कि इच्छा आ गई तो हम आ गए, इच्छा नहीं है तो नहीं आए. कोई भी इच्छा आ गई, इच्छा आ गई, डिजायर आ गए, ठीक है ना, तो सोल का काम आ गया. इच्छा नहीं है तो सोल का काम नहीं है. ओके. नो कर्मा, नो एनर्जी. कर्मा तो एनर्जी का काम यूज करती, ठीक है ना, तो एक ऊर्जा है. ओके. तो आप समझ गए, इच्छा ही तो सोल का काम है. सोल आ गया तो फिर कर्म को चलाने के लिए शरीर चाहिए, शरीर चाहिए, और वो शरीर को दिशा देने के लिए मन चाहिए. तो प्रॉब्लम है कि सोल को तो साइड में रख लिए एंड वी आर फोकसिंग ऑन द माइंड एंड द बॉडी. प्रॉब्लम ये है. ओके. आप माइंड के हिसाब से चलो. यू आर रनिंग योर लाइफ बेस्ड ऑन व्हाट योर माइंड सेज, नॉट व्हाट योर सोल सेज, बिकॉज माइंड
फाइव सेंसेस के ऊपर चल रहा है ना, जो व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर, व्हाट यू स्मेल, ओके, ये सब फाइव सेंसेस। ओके, उसमें योर माइंड गेट अट्रैक्टेड, अब माइंड अट्रैक्ट हो जाता है। इसको बंद करेंगे ना तो सोल की आवाज सुनाई देंगी, यू विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द सोल। ओके, सो व्हाट यू सी, द एक्सटर्नल चीजें जो दिख रहा है, इवन द कलर, इवन योर दिस कलर, द स्ट्राइप कलर, ओके, दैट इज ऑल्सो इल्यूजन, ये पूरा माया है, एवरीथिंग इज इल्यूजन, नॉट ट्रुथ, झूठ है, ये सब झूठ है। ओके, वॉट एवर यू सी फ्रॉम द आईज ऑल्सो इज नॉट रियल। So whatever you see the outside, okay, it is smallest part. What is inside is the biggest part. So which is invisible, वो powerful है. What is external, it is not powerful. But हम weightages किसको देते हैं? The things which is external, जो बाहर दिख रहा है ना, उसको हम weightage देते हैं. That's the problem. वो अंदर जाने के लिए you need to do certain क्रियास, उसको हम meditation बोलते हैं और अलग चीजें बोलते हैं. ठीक है? Understood? So good. So thank you very much. And if I keep on talking, सुबह 4 बजे तक बात ही करते रहेंगे। ठीक है। सो गुड, नेक्स्ट टाइम हम जल्दी मिलेंगे, नेक्स्ट 3-4 डेज। ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।